often seen influencers promoting or using those expensive products, going to Pilates with pink smoothie or matcha, or dressing up even to go to the nearby store just to give that it girl vibe or so-called glow up. Now before moving forward, let me introduce you all to myself. I am Rishika. Welcome you all to my channel Unspoken with Rishika. Just have a honest talk with you guys. So I just want you all to take a moment back and introspect yourself that do you really need those expensive self-care products just to have a glow up, or just in the name of self-care? क्या सेल्फ केयर नॉर्मल मिनिमल अफोर्डेबिलिटी के साथ में नहीं किया जा सकता? या फिर सेल्फ केयर हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारी सेल्फ एस्टीम, हमारी पर्सनालिटी, हमारी मेंटल हेल्थ सबसे इतनी बढ़कर हो चुकी है that we are now actually believing in external beauty is greater than internal beauty concept? क्या ये सच में ऐसा होने लगा है? क्योंकि इस तरीके से हम लोग इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते जा रहे दिन ब दिन कि हमारे सोशल मीडिया फीड के हम अब इस रियल लाइफ में भी इतने ज़्यादा इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ रहा है दैट आई लिटरली सीइंग कि इनके मेजर व्यूअर्स और या फिर इनके मेजर पीपल जो इनको देख रहे हैं कौन है? दे आर ऑल द टीनेजर्स एंड वी आर गेटिंग सो मच इन्फ्लुएंस विद दैट वी मेक irrelevant demands for actually not earning money. They are demanding these things from the parents, which is actually not good. Do you really think these irrelevant demands can make your personality grow so well or have some major growth in you? No, not in any way. ये 3,000 4,000 के प्रोडक्ट, some expensive product can't do anything to you. No. इन इट गर्ल और दैट गर्ल में कोई भी अंतर नहीं होता हमारे से, हम में और उनमें एक्चुअली में कोई डिफरेंस नहीं होता एज सच, बट एक चीज़ का ज़रूर डिफरेंस होता है, दैट इज़ पर्सनैलिटी, इनर ब्यूटी. सिर्फ बाहरी एक्सटर्नल ब्यूटी पे फोकस करने से नहीं होगा. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट पर्सनैलिटी, आवर सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट इज वेरी वेरी क्रूशियल टू अस, वेरी क्रूशियल. And to build that we don't need expensive products just to have a growth mindset. सिर्फ इतना चाहिए and free of cost आपका पूरा personality build हो सकता है literally. and यही तो आप लोगों को चाहिए. If someone insulting you and you are not replying to it, having no boundaries, बस ऐसे ही घूमते रहते हो, कोई personality नहीं है, and you are using some expensive products on your face just to have a glow up, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला. इसमें सिर्फ आपकी बेइज्जती हो रही है and nothing. Now in this whole 17 years I have understood this one thing कि mental glow up का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, mentally strong होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुद की personality होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, especially in 2025. So let me just share with you guys some practical things that you can do to have a mental glow up, to build a personality, or to at least show up in the society in a proper manner, mindfully, not with the external beauty, because it's always true that internal beauty is much greater than external beauty. First of all I will talk about setting boundaries. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. You need to understand, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. It's very crucial in our lives. First of all, in setting boundaries, the one thing that comes first is saying no. Please say no to the things which is not comfortable to you. It's okay to say no. At beginning of everything, like when I have not started YouTube, when I was in school back then, I used to be a person who used to overshare a lot, say yes to everything, and लोग just मेरा फ़ायदा उठा के चले जाते थे, and that's all. I get nothing in return. But क्या हुआ उन सब का? कुछ भी नहीं. जस्ट मैं अपनी एनर्जी और टाइम को वेस्ट करके चली गई. मैं उस वक्त नो कह सकती थी, बट मैंने नहीं कहा. दैट्स माई फॉल्ट एंड आई डोंट वॉन्ट यू टू मेक द सेम मिस्टेक. आई वॉन्ट यू टू गाइज टू नॉर्मलाइज सेइंग नो. Saying no will protect your energy, will protect your time, will
protect you from everything, from every toxicity that can happen around you. So yes, it is very important that you set your own boundaries, be it physical, be it emotional, anything. Next I will come ki how you are utilizing your 24 hours, to whom you are investing your energy, to whom you should pull out your energy, to pull out your time, save your time from them, and to which task you are actually dedicating time. तुम्हारे 24 आवर्स बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज होने चाहिए. यू नीड टू बी वेरी कॉन्शियस, कीप अ ट्रैक कि तुम्हारा टाइम कहाँ से कहाँ जा रहा है. टाइम इज़ लिटरल मनी. व्हेन पीपल से दिस दे एक्चुअली मीन इट. बहुत ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट करना. देयर इज़ अ वीडियो ऑल्सो दैट आई हैव मेड. इफ़ यू वांट यू कैन वॉच इट देयर. किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट किया जाता है. इफ़ यू आर स्टूडेंट और कॉलेज स्टूडेंट, इफ़ यू आर ऑफिस गोइंग गाइड टू, यू कैन ऑल्सो वॉच इट. सो आई विल जस्ट सी कि अपने टाइम को मैनेज करो. तुम किन लोगों पे अपने टाइम और एनर्जी को इन्वेस्ट करो. यू नीड टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट दैट. वेरी कॉन्शियस. इट हैज़ बीन सेइंग कि you are the average of the 5 people who have surrounded you. So it is very crucial कि you surround yourself with some of the good focused people who you ideal with, जिनको तुम आइडियल की तरह देखते हो, जैसा पर्सनालिटी तुम चाहते हो, जैसी फोकस के साथ तुम अपने ग्रोथ की तरफ आगे ग्रोथ कर रहे हो, खुद को अपस्केल कर रहे हो, खुद को स्किल्ड पर्सन बनाना चाहते हो, उसी फोकस, उसी गोल के साथ, उसी माइंडसेट के पीपल को अपने अराउंड रखो, अपने साथ अपने फ्रेंड्स बनाओ, उनके साथ इंटरेक्ट करो, इंटरेक्ट विद देम, टॉक विद देम, गेन, शेयर whatever, share the knowledge, interact with them a lot. You will gain a lot of knowledge actually. और अगर तुम्हारे आसपास में ऐसे ही लोग हैं जो कि किसी भी तरीके के फोकस या फिर उनका कोई गोल नहीं है, then you will be also eventually be that kind of person. So you need to be very conscious about your surrounding. also ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारा ग्रोथ. इवन नॉट ओनली दैट, तुम कैसे अपने डे टू डे लाइफ में परफॉर्म करो उस चीज़ को, तुम्हारी इफेक्टिवनेस, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, हर चीज़ को. नाउ एज आई सेड प्रोडक्टिविटी, आई विल कम नेक्स्ट टू दैट. प्रोडक्टिविटी क्या है? अब हर दिन प्रोडक्टिव होना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. एज आई सेड एक्चुअली प्रोडक्टिविटी कम्स फ्रॉम टाइम मैनेजमेंट डायरेक्टली. You time management, your day will automatically productive. You will complete all the tasks of the day which you have a kind of a goal, kind of a daily goal. You will fulfill all your monthly goals, yearly goals. यही productive है. अब ये भी नहीं है कि हर दिन productive जाए, कुछ दिन हो सकता है unproductive भी जा सकता है. You need to be conscious about that. You need to take simultaneously a break. And सबसे बड़ी skill जो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, I feel 2025 में सबसे बड़ी स्किल होनी चाहिए कम्युनिकेशन स्किल्स. वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने कई सारे लोगों को देखा है जिन्हें एक्चुअली में कुछ पता भी नहीं हो, किसी भी टॉपिक के बारे में हो सकता है उन्हें कुछ पता ना हो, बट सिर्फ अपनी कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू वो बहुत आगे चले जाते हैं. इवन कई सारे इंटरव्यूज में भी ऐसा देखा गया है कि देयर इज 2 एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय की कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी है, हो सकता है उनमें नॉलेज कम हो बट कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी है, और एक पर्सन है जिनमें नॉलेज तो ज़्यादा है बट कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है. बट पर्सन हु वर सिलेक्टेड आफ्टर द इंटरव्यू इज़ द पर्सन हु हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. तो बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल रखना बहुत ज़रूरी है. डेली लाइफ में ईजी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो. कम्युनिकेट करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपना नेटवर्क स्प्रेड करो. एक्चुअली नेटवर्क को स्प्रेड करो, लोगों से इंटरेक्ट करो, इवेंचुअली कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छा होता जाएगा. 2025 में इट्स वेरी क्रूशियल दैट यू बिकम अ स्किल्ड पर्सन. यू अपस्केल योरसेल्फ, यू अपग्रेड योरसेल्फ एवरी मोमेंट. ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेन मोस्ट ऑफ द स्किल्स व्हाट यू कैन. be it coding, be it any kind of other skills, you need to gain that. Learn, हर वक्त सीखो, कुछ ना कुछ करके सीखने की कोशिश करो. That will give you a growth type of mindset जहाँ से तुम डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो जितना हो सके तो, बिकॉज यही अल्टीमेटली एक बहुत बड़ी जड़ है एक्चुअली. डिस्ट्रैक्शन से जितना दूर रहोगे उतनी तुम ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ते हुए जाओगे. जितना तुम ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ते हुए जाओगे, यू विल इवेंचुअली हैव अ गुड पर्सनालिटी, good mental health,
योर इनर ब्यूटी एक्चुअली, तुम अंदर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते जाओगे एंड इवेंचुअली तुम्हें फिर कोई महंगी एक्सपेंसिव चीज़ें की ज़रूरत नहीं होगी टू बिकम दैट एक्सटर्नली ब्यूटीफुल काइंड ऑफ थिंग और बिकम दैट कलरेड गर्ल जो कि अक्सर हम सोशल मीडिया फीड्स में देखते हैं। एंड येस, एक्सरसाइजिंग रेगुलरली इज़ रियली इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं है कि व्हेन आई से कि बीइंग पिलाटीज लेके पिलाटीज में जाना है बेसिकली, लेकिन आई डिडंट एक्चुअली से यू दैट। आई एम सेइंग कि तुम घर में भी एक्सरसाइज कर सकते हो बिकॉज मीटिंग योर बॉडी इज़ वेरी क्रूशियल एंड ये कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ को भी अच्छी रखता है। सो these are all the things that you need to do. Basically building a personality is very crucial. Having self respect, जवाब देना सीखो if you don't know how to do that. If someone is insulting you, reply them, be it silence or be it some important reply that you need to give him. ऐसा कई बार होता है कि हमें टिट फॉर टैट करना पड़ता है, वो सामने वाला अगर हमें इंसल्ट करे तो we cannot be silent every time. So give an appropriate reply to them. सेल्फ एस्टीम रखो अपना, सेट बाउंड्रीज एंड ग्रोथ माइंडसेट से आगे बढ़ो, खुद को अपस्किल करते रहो, अपग्रेड करते रहो, स्किलफुल बनो। एंड येस, इंडिपेंडेंट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ एंड डेज ऑल्सो, क्योंकि वही एक्चुअली हमारी पर्सनैलिटी, हमारे सब कुछ को एक्चुअली बिल्ड करता है, हमारी सेल्फ एस्टीम को बिल्ड करता है। बीइंग इंडिपेंडेंट इज़ वेरी क्रूशियल. Do anything, you can grab a good placement, you can join any other profession also. So do that, and thank you so much for watching this video. I hope it had helped you a lot. If you have any kind of thoughts or if you want to express something, then comment box is open, you can comment down.